Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Today I will teach you Newton's second law and its applications, where it is used. Newton's second law is widely used and is a general law, and its application techniques where we use it. But before I teach you Newton's second law, I must tell you something about momentum. Momentum, a physical quantity called momentum. Let me start with momentum. Number one, momentum. Momentum. Momentum is a physical quantity. It is a product of mass and velocity. है तो दो physical quantities का product, mass और velocity का product है. But Newton could understand why it is so important. Why not velocity and mass individually are so important? Why their product is so important? It is very important, mass, product of mass and momentum, because it is a quantity which remains constant if you don't apply any force, external force, in general. In general, जब हम कोई force externally एक body पर apply नहीं करते हैं, तो इसका यह momentum constant रहता है. चाहे body का mass constant हो या vary हो, momentum remains constant. So Newton could see through this. That is why to define this quantity is very important. So momentum is defined as a product of mass and velocity. Mass and velocity. It is a vector, obviously, velocity vector hai. It is a vector. It is a vector and it is SI unit. Unit is kg meter per second. Yeah. So mathematically, momentum is P is momentum written as mass velocity. Yeah. Momentum is defined as a product of mass and velocity, and Newton could see through this why this product is important in physics. For me, mass and velocity is individually important, but he could see through this कि ये जो product है, why is it so important? तो आगे जाकर इसका इंपॉर्टेंस हमें पता चलेगा. डेफिनेशन तो सिंपल है, मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंटम बन जाता है. सो इट बिकम्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी. जैसे एक छोटी सी टॉय कार है, इट इज मूविंग वेरी फास्ट. मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है. इट इज द सेम थिंग एज ह्यूज कार हैविंग लिटिल वेलोसिटी. A toy car having high velocity is the same thing as a huge car, a big one, having very less velocity. Both is the same. क्योंकि प्रोडक्ट इनका सेम है. वो लिटिल टॉय कार है, मास कम है, लेकिन इट इज मूविंग फास्टर, उसका वेलोसिटी ज्यादा है. और ह्यूज कार मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, प्रोडक्ट इज द सेम फॉर बोथ. तो दोनों को स्टॉप करना इजी है. टॉय कार मूविंग फास्ट, यू कैन स्टॉप इट. हैवी कार मूविंग स्लोली विद इट्स वेरी वेरी लेस वेलोसिटी, इसको स्टॉप करना भी आसान है. अच्छा, तो मोमेंटम डिफाइंड इन मास एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर. जैसे एक बॉडी है, दिस बॉडी, पॉइंट नंबर सेकंड, ये बॉडी है, मास इसका m है और इसका वेलोसिटी जो है दैट इज v. तो इस बॉडी का मोमेंटम जो है दैट इज दिस मास और इसका ये वेलोसिटी. So from here we can define what is the statement of Newton's second law. Newton's second law is Newton's second law.
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो था वो एक डिस्क्रीट बॉडी के लिए था। अगर उस बॉडी को हम अप्लाई फोर्स नहीं करते हैं, इफ इट इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। उसका वेलोसिटी या तो जीरो रहेगा या दैट विल बी अ कांस्टेंट, बिकॉज रेस्ट एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द सेम थिंग, इट इज इक्विवेलेंट। लेकिन अब ये जो लॉ है, इट इज फॉर एनी बॉडी, उसका मास कांस्टेंट हो या उसका मास वेरी करता हो। This equation can even be applied to the rockets where the mass is continuously changing. This law can even be used to the trucks carrying sand, but the sand is leaking down. Sand is tipping down. वो sand नीचे गिर रहा है और उसका mass change होता जा रहा है। So this law is applicable to the constant mass systems. This law is applicable even to the variable mass systems. So that's what is important for the second law. Newton's second law is, if there is no external, so if there is external force acting on the object, अगर फोर्स, नेट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, एक ऑब्जेक्ट पर या सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर, लेट मी फॉर द टाइम बीइंग लेट मी से सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है। व्हाट विल हैपन टू दैट ऑब्जेक्ट? फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन वो तब जब उसका मास कांस्टेंट है। लेकिन अब मैं इस ऑब्जेक्ट को जनरलाइज ऑब्जेक्ट मानता हूं, इसका मास चेंज भी हो सकता है, इसका मास कांस्टेंट भी रह सकता है। मैंने फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर। व्हाट विल हैपन टू दिस ऑब्जेक्ट नाउ? इट्स मोमेंटम विल चेंज, दैट्स ऑल। इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, इट्स मोमेंटम विल चेंज, दैट इज सेकंड लॉ। अब मोमेंटम कितना चेंज होगा, वो ये कि आप कितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो। अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा इन द गिवन टाइम। सो दैट इज द लॉ। सो इफ देयर इज एक्सटर्नल, मैं लिखूंगा इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज, जब मैं कहूंगा एक्सटर्नल फोर्स, इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होंगे एक ऑब्जेक्ट पर, आपको उनका नेट निकालना है, आपको वेक्टर सम उसका निकालना है, तब जाकर देखना है कितना फोर्स है एक ऑब्जेक्ट। हो सकता है एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे फोर्सेस हो लेकिन उनका रिजल्टेंट जीरो हो, दैट मींस यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, नेट फोर्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेनेवर यू से फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, दैट मींस नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, मेनी फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी, द नेट फोर्स ऑफ ऑल दोज फोर्सेस। सो इट इज ऑलवेज द नेट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। अगर हम कहीं बेबी लिखते हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉडी, वी ऑलवेज मीन व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। अगर लिखेंगे नेट फोर्स वो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे then also it means the net force, it means the net force. So if there is net force acting on the object, acting on the object, the momentum of the object changes. That is all. तो अब रिलेशन क्या है? ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे नेट फोर्स तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा। तो द चेंज इन मोमेंटम, the change in momentum in 1 second, per second, the change in momentum per second, the change in momentum per second, एक सेकंड में जो इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, एक सेकंड में जो इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ is equal to applied force, that is all, in SI system of units, in SI system of units. एक सेकंड में इस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ तो उतना ही आपने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज ऑल। हाँ, इन SI सिस्टम, अदरवाइज यू नो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। असल में ये है F जो मैं अप्लाई कर रहा हूं दैट इज प्रोपोर्शनल टू
रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ओके मैं लिखूंगा पहले पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी, असल में ये है। लेकिन इन ऐसा यूनिट सिस्टम में ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको एडजस्ट 1 करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के टाइम्स दिस, दैट इज के को 1 कर दिया एसआई सिस्टम में, तो इट इज पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय डेल्टा टी, दैट्स ऑल। तो अगर एक बॉडी है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, इसका मोमेंटम चेंज होगा, 1 सेकंड में इस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वो तो बराबर है आपने कितना फोर्स अप्लाई किया। सो दैट मींस योर फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, दैट इज ऑल, वेरी सिंपल। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ मोमेंटम, दैट इज द अप्लाइड फोर्स। आप ये कह सकते हो कि अप्लाइड फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ही नहीं, नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, लेट मी सपोज, तो फिर उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा नहीं, उस बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा इन जनरल। चाहे बॉडी का मास चेंज हो या ना हो, चेंज हो तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने कोई अप्लाइड फोर्स दिया नहीं। ओके, नाउ लेट मी टेक दिस इक्वेशन फॉरवर्ड। इस इक्वेशन को थोड़ा मैं आगे ले जाता हूं, मैं देखना चाहूंगा व्हाट वी आर गेटिंग इस इक्वेशन को आगे ले जाने से। F इक्वल टू फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, इट इज द नेट फोर्स, बी केयरफुल अबाउट दैट। जब भी एक बॉडी पर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्स, उनका नेट निकालना पड़ता है, वो दैट इज मतलब वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना होगा, उस थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स करना होगा कि कैसे एक बॉडी पर बहुत सारी फोर्स जब एक्ट करते हैं उनका रिजल्टेंट निकालना है। और वो भी इजी है, आप कंपोनेंट्स कीजिए फोर्सों के, आप एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकालिए और फिर रिजल्टेंट आसानी से निकलता है। ठीक, लॉ अप्लाई करने से पहले फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तो एफ इज द एक्सटर्नल नेट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस इज इक्वल टू व्हाट, Pf minus Pi delta t, it is final momentum, it is initial momentum, it is divided by time, it is delta P by delta t. Yeah. The instantaneous force, अगर मैं force at any time, तो उसको कैसे लिखूंगा, द इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द बॉडी, वो कैसे लिखूंगा मैं, इसका मोमेंटम का डिफरेंशिएशन। भाई आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज यू नीड कैलकुलस, यू नीड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, यह है दूसरा इक्वेशन। इन ऑर्डर टू फाइंड इंस्टेंटेनियस फोर्स, तो आप देखेंगे हाउ द मोमेंटम चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियसली हाउ द मोमेंटम चेंज इन टाइम। आपको जो उस बॉडी का मोमेंटम है उसका डिफरेंशिएशन करना है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करने से, टाइम डेरिवेटिव निकालने से आपको अप्लाइड फोर्स निकलेगा, दैट इज ऑल। अच्छा, नाउ आई विल अप्लाई अ कंडीशन, द कंडीशन इज, I will apply a condition is, okay, what is the condition that I am going to apply now? But when I get something from there, that will be conditional, it will be a special case, which is a general case. जो अभी हमने दिखाया वो जनरल केस है, इसको मैं स्पेशल केस कैसे बनाऊं, हैव अ लुक, देखिए। लेकिन पहले मैं और एक चीज, उससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जो नेट फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन क्या है। लिखूंगा यहां पर मैं द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज, बताइए क्या है नेट फोर्स का डायरेक्शन। क्या नेट फोर्स का डायरेक्शन फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन है? नहीं। क्या इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन है? नहीं। नेट फोर्स का डायरेक्शन है पी एफ माइनस पी आई का डायरेक्शन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन।
The direction of the force is not that of final momentum or initial momentum. The direction of the force is the direction of change in momentum. The direction of the net force on the object is the direction of change in momentum. ये भी याद रखना चाहिए आपको, यानी कि डेल्टा पी का डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन, फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं, इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन नहीं, जो दो मोमेंटम के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के जो डायरेक्शन चेंज है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, चलो इसको मैं थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं डायरेक्शन निकालने के लिए. सपोज आपके पास एक बॉडी है, इसका मोमेंटम p क्या है, p ओके p1, ये है मोमेंट. अगर फोर्स नहीं है तो दिस मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, दैट इज द रूल. इफ देयर इज नो फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट्स मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट. इट इज ओनली द फोर्स व्हिच चेंजेस द मोमेंटम. आप कहेंगे नहीं नहीं, पहले आपने कहा देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तब तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है. वो तब जब उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो, लेकिन यहां वो कंडीशन नहीं. यहां ऑब्जेक्ट का मास चेंज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है. इट इज जनरल लॉ. दैट वाज अ स्पेशल लॉ, बट दैट इज लॉ इन इट्स ओन राइट. वो अपने में एक लॉ है. तो ये यहां मैंने ये फोर्स दिया, एफ किया अप्लाई फोर्स यहां पर, उसका डायरेक्शन ये है. अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसका मोमेंटम चेंज होगा. जब मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. अब जाकर मुझे बताइए, अगर ऑब्जेक्ट इस ओर मोमेंटम था, अब इसका मोमेंटम किस ओर होगा? चेंज की वजह से, फोर्स की वजह से चेंज होगा. अब वो मोमेंटम यूं होगा, p2. क्यों? वजह यह है कि मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हुआ. अगर मैं इन दो का चेंज निकालूंगा, p2 माइनस p1, तो टिप्स को कनेक्ट करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यू हैव कनेक्ट देयर टिप्स. तो चेंज इन मोमेंटम ये है, दिस इज p2 माइनस p1, दैट इज डेल्टा p. ये है चेंज इन मोमेंटम, p2 माइनस p1, ये वेक्टर. और देखो, ये वेक्टर का डायरेक्शन वही है जो फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि दिस डज नॉट हैव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, this does not have the direction of force. It is the change in momentum which has the direction of force. Please mark it there. कहां फोर्स आप अप्लाई करते हो और कहां मोमेंटम चेंज होगा. तो ये मिसकंसेप्शन आपको दूर हो जाना चाहिए. अगर बॉडी इस ओर जा रही है, फास्ट आपने इस ओर फोर्स दिया, ऐसा मत समझो बॉडी इसी ओर जाएगा. बॉडी यूं जा रहा था, आपने यूं फोर्स दिया, बॉडी यूं जाएगा, ताकि चेंज इन मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स. ये फोर्स दिया, ये मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम ये हो गया, ये वाला, और चेंज ये हुआ. तो चेंज हैज द सेम डायरेक्शन एज द फोर्स. लुक एट दिस. दिस इज वन पॉइंट. नाउ लेट मी गो टू द अदर पॉइंट, द पॉइंट विच इज स्पेशल केस, एंड विच इज, इट इज स्पेशल केस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द फर्स्ट लॉ. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. चलिए, फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट जो है वो, इस फोर्थ पॉइंट का बहुत वाइड एप्लीकेशंस है. क्योंकि वाइड एप्लीकेशन इसलिए है कि देखो, जब भी हम बॉडी को लेते हैं, हम उसका मास कांस्टेंट ही समझते हैं. फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस बॉडी है, मास कांस्टेंट है. ऐसा कभी कभी होता है कि आपको रॉकेट का इक्वेशन बनाना है, या किसी ट्रक है, उसमें सैंड है, दैट सैंड इज टिपिंग डाउन. वो कुछ चीजें हैं, उनके लिए अलग रूल है, वो हम बताएंगे. रूल तो यही है, लेकिन उसको मैं उस रूल को मैं एक इक्वेशन बनाकर, छोटा सा इक्वेशन बनाकर आपको देता हूं, ताकि वो याद रखकर आप उन सिचुएशन में उसको लगा सकते हो. लेकिन फिलहाल तो ये है फोर्थ. हैव अ लुक. मेरे पास ये सेकंड लॉ है. गौर से देखो इस चीज को. फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो फोर्स है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो फोर्स है ना ऑब्जेक्ट पर, ये देखना पड़ता है फोर्स, और इसको निकालना पड़ता है, और इसको रिजल्टेंट लिखना पड़ता है लेफ्ट साइड को. राइट साइड में इजी है. राइट साइड में मोमेंटम जो उसका डेरिवेटिव लेना है, वर्क तो आपको यहां करना है. एक ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है,
पहले उनको देखना पड़ेगा कहां से फोर्स आया, कितना है, रिजल्टेंट क्या है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस बॉडी को इस लेफ्ट साइड को लेकर। इसके लिए कुछ भी नहीं, न्यूटन यहां है, ये तो आप हो जो फोर्सेस अप्लाई करते हो। फॉर्मूला इज दिस, ओके लेट मी सी, हैव अ लुक, F इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ये मोमेंटम जो है इट इज एम वी, फिलहाल ये सेकंड लॉ भी चल रहा है। अब मैं इसको स्पेशलाइज करूंगा उन बॉडीज के लिए जिनका मास कांस्टेंट है, एंड यू विल हैव ए शॉर्ट स्मॉल फॉर्मूला फॉर ऑल दोज बॉडीज व्हिच हैव कांस्टेंट मास, एंड मोस्टली वही तो होता है मोस्टली, सो व्हाई नॉट टू यूज ए सिंगल बेस्ट इक्वेशन फॉर ऑल दोज बॉडीज व्हिच हैव कांस्टेंट मास। तो अगर ये मास को कांस्टेंट रखो और देखो लॉ, व्हाट लॉ रिड्यूसेस टू, अब लॉ का क्या फॉर्म होगा, सो F इज इक्वल टू m बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, अगर m का डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर वो वेरिंग मास लेकर के रॉकेट इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन m बाहर निकाला तो डिफरेंशिएशन किसको होगा, वेलोसिटी को, तो इज इक्वल टू ये m, बट दिस इज dv बाई dt इज एक्सेलरेशन बाई डेफिनेशन। तो आपका मिला इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन आपको मिला। दिस इक्वेशन इज गुड फॉर व्हाट, यस दिस इज गुड फॉर ऑल दोज बॉडीज which have constant mass, and most of the bodies do have constant mass, so that is why this equation is widely used. But it is not the second law. Second law is this, it's a special case of the second law, don't forget that. This is not the second law. Second law is this is the special case of the second law. Be careful about that. अच्छा, अब जरा देखो, लेकिन यहां पर देखिए है तो लॉ सिंपल, लेकिन एप्लीकेशन में थोड़ा सा आप गड़बड़ करते हो, थोड़ा सा आप इसको गलत मलत तरीके से करते हो। दिस F is you are creating the force of the object, you have to find those forces, find their resultant, maybe find the resultant in the x direction, maybe you have to find resultant in the y direction, maybe you have to find all the forces in the z direction. M is mass of the object, that is very easy, mass of the object may be given, and acceleration of the object which is caused, वो देखना पड़ेगा कितना acceleration उसका हुआ, वो भी आसान है। राइट साइड में ये फॉर्मूला है, लेफ्ट साइड में आपको फोर्सेस निकालने। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अच्छा चलो यही सही, लेकिन इसका मैं देखो, या तो ये इक्वेशन है, एक स्ट्रॉन्ग इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, इसके तीन कंपोनेंट्स है इक्वेशन के, Fx समेशन ऑफ व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ x फोर्सेस, यानी कि आपने फोर्स दिया लेकिन बहुत सारे फोर्स दिए, उन सब फोर्सों का x कंपोनेंट में क्या रिजल्टेंट है, दिस द रिजल्टेंट ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, दैट इज m, ये ax इक्वेशन, it is x component of this equation, Fy ma, maz. Sometimes you have to use, maybe in some case only you have to use this equation, sometimes you may have to use in vertical, देखो जब मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्या करना है इसको, क्या करना है इसको, क्या करना है इसको यूज करना। z डायरेक्शन में कभी देखा नहीं कि होता है कोई कुछ, अगर हो तो z डायरेक्शन में मोशन तो ये इक्वेशन लगा, अगर x डायरेक्शन में मोशन तो ये इक्वेशन लगा, अगर y डायरेक्शन में मोशन है तो एक इक्वेशन लगा, अगर प्लेन में मोशन है xy प्लेन में, दोनों इक्वेशन यूज करो। तो आपको पता चलना चाहिए कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है, बाकी यही तो है, इट्स ए ग्रेट इक्वेशन। अगर यही यूज, एक ही स्ट्रॉन्ग यूज इक्वेशन करोगे तो वो भी ठीक है, या तो ये यूज करना है या तो ये तीन यूज करने हैं। How many equations are in total? 1, 2, 3, 4. No. These are not 4 equations. Be careful. Either this one or these 3. दो में से एक, या सिर्फ एक ये इक्वेशन यूज करो या ये तीन इक्वेशन यूज कर सकते। ये 4 इक्वेशन नहीं है। They are only either these 3 independent equations or this single vector equation. Be careful about using things. मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँ, छोटा सा। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैंने 5 न्यूटन का फोर्स यहां से दिया, यहां से 1 न्यूटन का फोर्स दिया। चलो कुछ और भी करता हूं, करना था इतना ही लेकिन और भी करता हूं। यहां से 3 न्यूटन का फोर्स है, यहां से 7 न्यूटन का फोर्स है। बताइए क्या करूंगा? मास 1 kg,
इस पर फोर्सेस है, इस पर फोर्सेस है। तो क्या किया जाए, मुझे निकालना है इसका एक्सेलरेशन। देखिए फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में है, फोर्सेस वाई डायरेक्शन में है, कभी कभी और भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको भी कंपोनेंट करके यही किया जा सकता है। अगर आपको फोर्स किसी और डायरेक्शन में भी है, उसका यही किया जा सकता है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में है तो ये इक्वेशन यूज करो, वाई डायरेक्शन में ये करो यूज। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, इसमें व्हाट इज द समेशन ऑफ द एक्स फोर्सेस, ये देखो 5 इस डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन में। देखिए व्हाट इज दिस 5, ये मैं निकालना चाहता हूं, ये वाला, जिसके लिए मेहनत करनी मैंने आपको बताया, इसके लिए मेहनत करना है, देखना पड़ेगा रिजल्टेंट। ये समेशन एफ एक्स निकालिए, एफ 5 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, दिस इज द समेशन ऑफ एक्स फोर्सेस, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एक्स। ये जो है ये है, इज इक्वल टू एम इज 1 kg इंटू ए एक्स, तो हो गया ए एक्स इज इक्वल टू 4, आंसर। जरा ये इक्वेशन यूज करो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। व्हाट इज समेशन ए वाई, व्हाट इज एफ वाई, 3 एंड 7 दोनों नीचे डायरेक्शन में, -3 क्योंकि ये वाई के उल्टा है, नीचे की ओर है, -7 इज इक्वल टू एम, व्हाट इज एम 1, ए वाई इज -10, खत्म। इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है 10, इस डायरेक्शन में राइट को ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए एक्स, ये नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए वाई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, दैट इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ, दैट इज 16 प्लस 100, दैट इज रूट ऑफ 116, आंसर। सो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, बहुत इजी इफ यू मतलब कंसंट्रेट ऑन इट। अच्छा, 5th पॉइंट, अच्छी तरह से देख लो कैसे किया जाता है काम, डोंट मेक मिस्टेक्स। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट, 5th पॉइंट, अगर मेरे पास एक बॉडी है 2 kg का बॉडी, मैंने यहां 5 न्यूटन का फोर्स दिया और यहां सपोज 3 न्यूटन का फोर्स दिया, बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। ए एक्स निकालना है, क्या करेंगे आप, अरे फोर्सेस तो एक्स डायरेक्शन में है, तो जब आप एफ इजिकल टू एम ए की बात करोगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट आपको अच्छा लगेगा, कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे, या यही यूज करो तो वो भी नहीं, क्योंकि फोर्स समझो ये फोर्स यही है और ये ए यही है तो वो भी चलेगा, लेकिन ये भी चलेगा एफ एक्स समेशन इज इक्वल टू एम ए एक्स, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स है तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। व्हाट इज एफ एक्स, कीजिए 5 प्लस 3, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल, बताइए एम 2 ए एक्स ऑफ 8 इज इक्वल टू एक्स 2 ए एक्स। व्हाट इज एक्स, 8/2, 4 meters per second square, आंसर। दिस इज हाउ यू यूज द थिंग्स। फोर्स जो आप अप्लाई करते हो उसका रिजल्टेंट पहले निकालो, वो रिजल्टेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में निकालो, कोई भी फोर्स है उसको कंपोनेंट पहले करो, फिर एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स को अलग अलग निकालो, फिर इक्वेशन लिखकर इसको खत्म करो, ठीक। अच्छा, तो अब जाकर के क्या हमने सीखा, मैं बताता हूं हमने सीखा क्या, व्हाट वी लर्न। हमने लर्न किया, देखिए मैं समझाता हूं हमने क्या लर्न किया। हमने लर्न किया एक बॉडी अगर है, इस पर अगर नेट फोर्स है, इसका मोमेंटम चेंज होगा, कितना चेंज होगा 1 सेकंड में, उतना ही जितना आपने फोर्स दिया। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस इज अ ट्रू इन जनरल फॉर ऑल द बॉडीज वेदर देयर मास इज कांस्टेंट और वेरिंग। लेकिन मैंने वेरिंग मास का कोई एग्जांपल दिया नहीं, लेकिन इमीडिएटली मैंने इसको कांस्टेंट मास के लिए सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस किया। क्या था वो, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो एफ इज इक्वल टू एम ए इज एन इक्वेशन व्हिच कैन बी यूज्ड एनीवेयर एवरीवेयर फॉर कांस्टेंट मास बॉडीज।
वेरिंग मास के लिए हमें डायरेक्ट वही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, F इज इक्वल डेल्टा P बाई डेल्टा T। और इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स पॉसिबली व्हाट आई विल शो यू, रॉकेट इक्वेशन या टाइम वेरिंग सिस्टम्स के लिए डायरेक्ट F इज इक्वल डेल्टा P बाई डेल्टा से ही आंसर हम निकालेंगे, क्योंकि वहां मास चेंज होता है, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने कांस्टेंट मास के लिए इक्वेशन बनाया वो नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमने वहां लिखा है इट्स अ कांस्टेंट मास इक्वेशन। बट fortunately most of the situations, most of the cases, even IIT level you are asked questions are constant mass bodies। बीच में अगर होगा भी वो इजी है, उसको हम दिखाएंगे। अच्छा, now let me tell you something about free body diagrams। कैसे ये बॉडी, देखो ये जो इक्वेशन है कैसे हम यूज करेंगे बॉडीज के लिए, क्यों हमें मतलब प्रॉब्लम होता है, व्हाई वी यूज से फिर प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग दीज इक्वेशंस, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता। देखो ये जो लेफ्ट साइड का फोर्स है, इसके बारे में क्लास लेक्चर में मैंने आपको बताया था, फोर्सेस कहां से आता है, ये फोर्स कौन एजेंट है, क्या है इसका प्रॉपर्टी, तो जब उसका पता चलेगा तभी यूज करेंगे ना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, जैसे F इज इक्वल टू ma है, यू मस्ट नो व्हाट F इज, यू मस्ट नो व्हाट A इज, व्हाट M इज, दैट इज द कॉन्सेप्ट। किसी ने याद रखा इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, लेकिन उसको यही पता नहीं F क्या है, वो कहेगा फोर्स है, मैं कहूंगा नहीं एक्सटर्नल नेट फोर्स है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। और एक्सेलरेशन राइट साइड पे क्या है, दैट इज काज्ड बाय दिस फोर्स, वो तो ma राइट साइड पर न्यूटन बैठा है, लेफ्ट साइड पर आप खुद हो F, वो निकालना पड़ेगा, आप दे रहे हो फोर्स। तो इसलिए मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, शायद आपको इजी फिर हो जाए चीजें। ये बॉडी है, इसका मास m1 है, और ये बॉडी है, इसका मास m2 है। आपने ये फोर्स F इस पर अप्लाई किया। आई वांट टू राइट न्यूटन्स लॉ फॉर दिस ऑब्जेक्ट एंड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। F इज इक्वल टू ma, यहां इसके लिए भी लगाना चाहता हूं और इसके लिए भी लगाना चाहता हूं। लेकिन जब ये बॉडी आप फोर्स देते हैं, दीज बॉडी आर दे स्टिक टुगेदर, दे मूव टुगेदर, दे मूव टुगेदर, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। इनको मजबूरी है, दोनों एक ही एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं, वो इनकी मजबूरी, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट मोशन। अगर आपने इसको पुश किया, ये भी पुश आगे होता जाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो फिर ये इससे आगे नहीं निकल सकता है, या ये इसके पीछे नहीं जा सकता है, दे हैव टू मूव टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। तो उस कांस्टेंट मोशन की वजह से पहले हमें क्या लिखना पड़ा, वो दैट इज कांस्टेंट इक्वेशन, वो आप खुद इमेजिन कर सकते हो। इसका एक्सेलरेशन भी a है और इसका एक्सेलरेशन भी a है, वो कांस्टेंट की वजह से और किसी वजह से नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो फोर्स है, ये फोर्स ट्रांसमिट होकर के इस बॉडी पर एक्ट नहीं करता है, इस बॉडी पर एक्ट करता है फोर्स जो ये पुश करता है। तो इसके लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। इसने इसको पुश किया बाय फोर्स Fc, लेट मी सपोज कांटेक्ट फोर्स, लेकिन ये बॉडी जो है ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये भी वापस फोर्स क्रिएट करेगा सेम इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस बॉडी के लिए m2 के लिए m1 के लिए ये फोर्स होगा, वो ये बॉडी करेगी। इसने इस पर फोर्स क्रिएट किया, लेकिन इसने बैक इस पर फोर्स क्रिएट किया। Action and reaction, they don't act on the same body, they act on two different bodies which interact with each other। ये इस पर फोर्स एक्ट करेगा फॉरवर्ड की ओर, ये इस पर फोर्स करेगा बैकवर्ड की ओर, लेकिन इस पर तो आगे आपको फोर्स F है। अब जाकर के हम यूज कर सकते हैं इक्वेशंस, न्यूटन्स इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, इसके लिए यूज करो, फिर इसके लिए यूज करो, इसके लिए इक्वेशन लिखो, F इज इक्वल टू ma का इक्वेशन इसके लिए लिखते हैं। बताइए क्या लिखूंगा मैं, एक्स डायरेक्शन में सब मोशन है, क्या लिखूं, यस F नेट, कि ये F इसके साथ कंफ्यूज होगा। बताइए क्या लिखूंगा, बताइए F ये वाला माइनस Fc हो गया रिजल्टेंट फोर्स नेट, इस पर नेट यूं और यूं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, व्हेन वेक्टर्स आर अपोजिट दे आर सब्ट्रैक्ट, इज इक्वल टू ये वाला m1 और इसका एक्सेलरेशन जो है a, हो गया, इसका इक्वेशन लिख लिया। अब इसका बताइए, इस पर फोर्स क्या है, एक ही तो है, वही तो रिजल्टेंट है, Fc इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, m2 a, खत्म बात। अब आप इन दो इक्वेशन को यूज करके F भी निकाल सकते हो, Fc भी निकाल सकते हो। इन दो को इक्वेशन को यूज करना और देखना है Fc किसके बराबर है।
चलो निकाल कर ही देता हूं। दोनों को ऐड करो, इनको जब ऐड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन मिल गया आपको F बाय m1 प्लस m2। दोनों को ऐड करने से ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। F इज इक्वल टू सम ऑफ दीज। लेकिन अब FC किसके बराबर? m2, एक्सेलरेशन निकाला, F बाय m1 प्लस m2। ये देखो यार, FC m2 ऐसे ही लिखा, ए को यहां से सबस्टिट्यूट किया तो हो गया। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, यह जरा देखिए आप। सिक्स्थ पॉइंट, sixth point. With this example, I end my lecture, but there are few more examples. I will give you a next lecture. I will discuss those points in the next lecture. And with these points, I ask the students to download the app and also subscribe the YouTube channel, Tantra Sir Physics Classes. Thank you.